एक बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने उनके बारे में सुना भी होगा, दाग देहलवी। उनका एक शेर है, हजरते दाग जहां बैठ गए सो बैठ गए, वो और होंगे तेरी महफिल से उठने वाले। मैंने भी इसी तरह, कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने, I have also determined and decided कि मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस, इंसिडेंट्स, लाइफ लेसन्स वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा और ताउम्र करता रहूंगा। सो यू गॉट टू bear me, you got to bear with it. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, और this happened with me during my first posting. After my commissioning, I was posted in a place called Belgaum, Air Force Station Belgaum. It is, in Karnataka and Maharashtra और कर्नाटका के बॉर्डर पे you can say. और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वहां पे हुई। ये बात है 1982 की। 1982 की। We were all young officers, pilot officers. We were all staying in the officers' mess. Once I felt terribly sick, क्योंकि वहां पे रेंज बहुत ज्यादा होती थी, of course in a particular season, November, December. And once, I got thoroughly drenched and I got viral fever and I was down with high fever, body ache और हर तरह का जो भी हो सकता है. So one day in the morning, early morning, when I was sick and I was in the officer's mess in my room, I literally had no energy to go to the mess. The dining hall and the other portion of the mess was around, you can say 100 feet away. और बाहर बारिश हो रही थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं उठ के मेस में जाऊं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। उन दिनों, as per the rules of the Air Force, getting the food in the room was not allowed until you have been exempted by a doctor, और क्योंकि मैंने अभी आज ही डॉक्टर को दिखाना भी था, so I had no choice but to go to the mess, to the dining hall for my breakfast. लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी and I started praying, कि भगवान करे कि फ्रांसिस मेरा ब्रेकफास्ट लेके रूम में आ जाए. Now I must tell you, Francis was the name of my orderly. Each officer was given one orderly, helper kind of a thing. जो हमारी यूनिफॉर्म लगाना, शूज वूज, बेल्ट पॉलिश करना, रूम सेट करना और मिसलेनियस काम, तो फ्रांसिस करके एक गोवनीज वो था. I still remember him. He was a lean and thin man, old man, and he used to always be putting a khaki knicker, खुली khaki knicker, और ऊपर t-shirt, A very good chap, a very, very nice chap. He literally used to look after us like children. We were young and we were very, very volatile, very brash. You can imagine, जहां पे 20-25 young officers रहते हो, वहां पे क्या गदर होता होगा उस मेस में, So I was praying कि यार आज तो फ्रांसिस ही ब्रेकफास्ट ले आए तो मजा आ जाए. जब मैं ये सोच ही रहा था तो रूम में बाहर किसी ने नॉक किया, खट 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 खट. सो आई ओपन द, धीरे धीरे जाके मैंने दरवाजा खोला. राइट इन फ्रंट ऑफ मी फ्रांसिस वाज स्टैंडिंग विद अ ट्रे इन हिज हैंड, और उस ट्रे में फर्स्ट क्लास, टोस्ट, जैम, कॉर्नफ्लेक्स, माय फेवरेट, हॉर्लिक्स मिल्क, and whatever was the other chota mota, some fruits. Well, it was a complete spread for the breakfast. I was so happy. I told him, Francis, thank you so much. मैं यही सोच रहा था कि आज आप मेरा ब्रेकफास्ट रूम में दे दे, because I have no energy to go to the mess. So he walked up to the room, kept the breakfast on the dining table, didn't speak a word. वो नहीं तो सुबह जरूर कुछ ना कुछ मेरे से बातें करता था, कुछ पूछता था, एक वर्ड भी नहीं बोला. He just smiled at me, ब्रेकफास्ट रख के he went away.
तो मैं कहा maybe today he's not in a mood to talk or whatever it is. So I had my breakfast and उसके बाद मैं आराम से आके अपना बेड पे I was relaxing because by around 9:30, 10 o'clock the ambulance was to come and take me to the sick quarters, to the doctor in the unit. तो 15-20 मिनट के बाद जब मैं बैठा हुआ था फिर दरवाजे को किसी ने नॉक किया. तो आई वाज सरप्राइज. मैं कहा ये अब कौन है सुबह सुबह तो आई अगेन वेंट अप टू डोर, ओपन द डोर और सामने फ्रांसिस खड़ा हुआ था. तो आई वाज सरप्राइज. मैं कहा फ्रांसिस आप अभी तो आए थे, ब्रेकफास्ट भी दे दिया, तो दोबारा आप किस लिए आ गए? नाउ जस्ट लिसन केयरफुली. This is what is absolutely shocking, but absolutely true, because it happened with me. और मेरे बहुत से जो friends, course-mates, colleagues, my children, my relatives, they all know this story. And I am sure बहुत से लोग सुन रहे होंगे इसको, and they will vouch for it कि what I am telling is absolutely correct. तो फ्रांसिस asked me, सर आज आप ब्रेकफास्ट करने नहीं आए? मैं तो वेट कर रहा था मेस में. मैं कहा ब्रेकफास्ट करने नहीं है, ब्रेकफास्ट तो अभी आपने दिया है. ही सेड नहीं सर मैं तो आया ही नहीं, मैं तो आज थोड़ा लेट हो गया था घर से और मैं इधर ऑफिसर्स रूम्स की तरफ तो आज आया ही नहीं. मैं तो मेस में ही बैठा हुआ था और छाता लेके आया हूं. मैं कहा बारिश हो रही है कि आपको लेके ब्रेकफास्ट करवा लाता हूं. आई वॉज रियली शॉक्ड. मैंने वो रूम में देखा, ट्रे देखी, वो ब्रेकफास्ट जो मैंने खाया हुआ खाली ट्रे, कप, ये वो. आई टोल्ड फ्रांसिस, मैं कहा ये फिर कौन लाया? आप अभी तो आए थे. ही सेड कि सर मुझे तो पता नहीं कौन लाया. नाउ दिस इज वन इंसिडेंट विच रियली शॉक मी. आई वॉज वंडरिंग कि वो कौन था. वॉज इट सम नोबल सोल, या कौन था वो जो लाया मुझे ब्रेकफास्ट दिया? Maybe I was praying so feverishly, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि प्रभु मेरी हेल्प करो, मुझे ब्रेकफास्ट यही रूम में दिलवा दो. And when I told this to Francis, he had a very queer smile on his face. So I asked him, मैं कहा ये क्या हुआ, क्यों आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, मिस्टीरियस सी स्माइल क्यों दे रहे हो? तो he told me कि सर ये आपके साथ ही नहीं, ये 5-6 साल से कई ऑफिसर्स के साथ ऐसा हो चुका है. नाउ दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट विच हैपेंड विद मी इन एयरफोर्स स्टेशन बेलगाम इन ऑफिसर्स मेस इन 1982. मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता या मैं किसी को कोई डराना नहीं चाहता, बिकॉज आई फर्मली बिलीव दैट we all live the life as per our experiences, as per our lessons. This was an experience which I had, और उस दिन के बाद से मैंने इस बात को मान लिया कि definitely 101% there are some people, some souls, some spirits, उन्हें जो भी कहो, हमारे आसपास some angels, those who definitely exist and they coexist with us. वो हमारे आसपास ही रहते. ये बहुत ही मुझे बड़े दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं स्टोरी सबके साथ शेयर करूं. सो आई शेयर्ड इट विद यू. आई होप यू लाइक्ड इट, यू एंजॉयड इट. कमेंट करके बताइए अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल राजेश मोहन फैमिली मोटिवेटर एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो. आई विल कंटिन्यू टू शेयर सच इंटरेस्टिंग incidents which happened with me, with all of you. Good luck to all of you. Good luck to all of you. Bye-bye. Lovely weather outside. It just rained,